Hello students, today we will discuss a very important question, that is show that mechanical energy of freely falling body is remain constant or remain conserved. So mechanical energy means the sum of potential as well as kinetic energy. So potential energy plus kinetic energy equal to constant or conserved. So have a look on this diagram. Here is a body of mass m which is initially at point A and at rest at point A, and the body is at height h from the surface of earth. So then body is allowed to fall. So when the body is allowed to fall, then at any instant of time, the b is the position of the body, and the body has covered some path, that is x. So the remaining path or journey, that is equal to h minus x. At last the body will reach at point c. So if we prove that at point a, at point b and at point c, the sum of potential and kinetic, that is mechanical energy, remain conserved, then we can prove this statement. So let's start at point A. At point A, that is step number 1, consider a body of mass m initially at rest and at point A, which is at a height h from the ground. So at point A के ऊपर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर. So kinetic energy equal to half mv square. Since the body is at rest A, so its kinetic energy is 0, because kinetic energy is by virtue of its motion. जब body motion में होती है then it attain kinetic energy. So kinetic energy की वैल्यू बेटा 0 बन गई A point पे. Now what is the value of potential energy? So potential energy equal to U is equal to mgh. H is the height, which is initially the body is at height h. So because the potential energy is by virtue of its height, by virtue of its position, by virtue of its configuration. So the position of the body initially at h. So kinetic energy 0, potential energy mgh. So the mechanical energy, that is the sum of kinetic and potential, equal to 0 plus mgh equal to mgh. So finally we have at point A the mechanical energy equal to mgh, equation number 1. Now we will prove that if the mechanical energy at point V is also mgh and also at C it is mgh, then we can prove the mechanical energy remain conserved. So let's start with the point B. At point B, let the body is allowed to fall, so its potential energy decreases and kinetic energy इंक्रीजेज. पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि बॉडी की जो हाइट है बेटा वो कम होते जा रही है. काइनेटिक एनर्जी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि बॉडी जो है वो उसने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, बॉडी इज इन मोशन. लेट द बॉडी वी इज एट पॉइंट बी. किसी इंस्टेंट पे बॉडी जो है वो बी पे है एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ए. जैसे मैंने बताया आपको, ए से बेटा एक्स डिस्टेंस है और नीचे ज़मीन से उसकी जो हाइट बनेगी उस टाइम वो बनेगी बेटा एच माइनस एक्स. सो हमें पता है काइनेमेटिक रिलेशन है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as. सो यहाँ पे v की वैल्यू जो मैंने मान ली, जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, दैट इज़ v1 एंड द u is equal to 0. Why u equal to 0? Because body has started its journey. And s is equal to x. S is equal to x means क्योंकि बॉडी ने जो पाथ कवर करा दैट इज इक्वल टू x, एंड a इज इक्वल टू g, क्योंकि बॉडी जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रही है. सो यहाँ से बेटा v1 की वैल्यू बन जाएगी 2gx. सो v1 स्क्वेयर इक्वल टू 2gx मेरे पास बन गया बेटा. सो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई, काइनेटिक एनर्जी एट b इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वेयर. v1 स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हाफ m इंटू 2gx. सो काइनेटिक एनर्जी एट b इज इक्वल टू mgx. 2 गोज विद 2. नाउ वी विल फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी. सो द पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू mgh, जो फार्मूला है. पर यहाँ पे h की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, क्योंकि बॉडी जो है वो एट ए हाइट h इक्वल टू h माइनस एक्स है फ्रॉम द ग्राउंड. सो इट मीन्स हियर h की वैल्यू बन जाएगी h माइनस एक्स. सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम mgh माइनस एक्स. सो द मैकेनिकल एनर्जी फार्मूला है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh माइनस एक्स, वो हम पुट कर देंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी हम निकाल चुके हैं दैट इज mgx. So we will open the bracket here, mgh minus mgx plus mgx. Minus or plus mgx both cancel out. So we have only
but mechanical energy at B equal to mgh. So at point B mechanical energy equal to mgh, इक्वेशन नंबर 2. सो हमने बेटा नंबर 1 इक्वेशन जब लिखी थी तो भी वहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए थी वो भी mgh थी और B पे भी बेटा एनर्जी mgh ही आ गई. नाउ वी विल फाइंड द मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C विच इज स्टेप नंबर 3. सो स्टेप नंबर 3, नाउ द बॉडी इज एट ग्राउंड. जब बॉडी बेटा ग्राउंड पे आ गई सो एच इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब तो उसकी हाइट कुछ रही नहीं. जब एच इक्वल टू 0 आ गया सो द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, जिसका फार्मूला है mgh, तो अगर हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0. सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई 0. लेट v2 विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट रीचेज द ग्राउंड. जैसे ही बॉडी ने ग्राउंड को टच करा वैसे ही जो बॉडी की वेलोसिटी है हमने मान ली v2. सो अगेन वी विल अप्लाई द काइनेमेटिक रिलेशन. सो यहाँ पे v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2 है ऐसा बेटा. सो v की वैल्यू बन जाएगी v2, u इक्वल टू 0 क्योंकि बॉडी जो है वो मोशन में है, a इक्वल टू g और s इक्वल टू, बॉडी ने टोटल पाथ कितना कवर करा h, ठीक है, s इक्वल टू h. सो v2 स्क्वेयर इक्वल टू 2gh, यहाँ सारी वैल्यूज पुट करके. नाउ द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वेयर. v की वैल्यू यहाँ क्या है बेटा v2 है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हाफ m इंटू 2gh, 2 गोज विद 2, सो वी हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgh. So now we will find the mechanical energy. So mechanical energy equal to potential energy plus kinetic energy. Since the potential energy will become 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 बन गई बेटा. काइनेटिक एनर्जी क्या आई mgh. सो द मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू 0 प्लस mgh, दैट इज mgh. सो द मैकेनिकल एनर्जी एट C इज इक्वल टू mgh विच इज इक्वेशन नंबर 3. सो यहाँ पे बेटा आपने देखा कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 तीनों पे पॉइंट जो है वो तीनों पॉइंट पे A, B और C पे मैकेनिकल एनर्जी की आई mgh. सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इट इज़ क्लियर दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड. तो यही हमें प्रूव करना था बेटा. सो थैंक यू बेटे.